प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मुझे लगता है नॉलेज सबके पास बहुत है, लोग टेक्निक नहीं पता कर पाते। स्लीपी क्लासेस का एक प्रीमिक्स आता है, तो मैं जब खाना खाती थी तो मैं उसको चला लिया करती थी। स्लीपी क्लासेस हैज बीन अ वेरी कॉर्नरस्टोन इन माय प्रिपरेशंस। हेलो Great. मैम। Hello, how are you? How have you been? How has the entire experience been? So, ma'am, actually, it's looking like a dream come true. So, it has been a long journey. It was my third attempt. Oh, And the third attempt, third means and first interview. So I got in with this time. So like when you get in the third time, you actually recognize the value of this thing. right. So actually, so previous two mains, my optional was mathematics. This time I changed to sociology. So that's the thing that worked for me. मैम सबसे पहले तो होगा कि ऑप्शनल बहुत ढंग से चूज करना चाहिए, क्योंकि वही मेरा 100 नंबर जो पड़ा है लास्ट मेंस में, वो मेरे ऑप्शनल में पड़े हैं। और मैम एक चीज जो मुझे समझ में आई कि जो फर्स्ट टू मेंस थे मेरे, उससे मेरे नोट्स तैयार नहीं थे, जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके GS 1, 2, 3 एंड 4 के। क्योंकि जब आपके पास एक एक दिन का टाइम होता है, जब आपको अगले दिन लिखना है या मेंस लिखना है, तो अगर आपने वो याद नहीं कर रखे, नोट्स नहीं बना रखे ना, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। So in this time, I made very short notes, especially of GS2. So in my GS2 marks around 120. I think it's very good. So I made short notes of every PYQ. So that actually helped. So if somebody would have, if I have to advise someone, I would say that please make notes. बहुत बुरा लगता है notes बनाने में, but अगर आप पहले बना लोगे तो 2-3 साल बच जाएंगे। Right, absolutely. मैम सो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में था, जब कोविड वाला था। तो मैंने एक मेंस दिया जनवरी में, फिर मैंने फॉर्म भर दिया था जब तक मार्क्स आए, तो फिर मुझे दूसरा मेंस भी देना पड़ा। मैंने मैथ्स का पेपर 1 दिया, मैं रोते हुए बाहर निकली, मतलब मुझे प्रिपरेशन ही नहीं करनी मैं छोड़ रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मेरे पापा ने बोला ठीक है तू घूम के आ। तो मैं 10-15 दिन घूमी मैम। फिर मैंने लोगों को देखा तो मुझे लगा यार UPSC ही करना है। फिर शेखर सर का एक वीडियो था नवनीत सर के साथ, शायद से उन्होंने भी मैथमेटिक्स से सोशल, और उनके 3 मतलब काफी अच्छे नंबर थे। तो उसको देख के मुझे लगा कि यार शायद से सोशियोलॉजी में चेंज करना इजी रहेगा। तो दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन सोशियोलॉजी। एंड मेरी फ्रेंड थी लास्ट ईयर, शी गॉट सिलेक्टेड, अनुजा त्रिवेदी। तो शी ऑल्सो गाइडेड मी कि भाई ये करना है। उसके भी सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, तो सोशियोलॉजी में गाइडेंस बहुत ज्यादा थी। और सबसे छोटा ऑप्शन मेरे को एंथ्रो और सोशियो में सोशियोलॉजी लगा, तो ये रीजन। First, I would like to consider the optional answer writing. So I did it in 3 months. So in first month, I completed the sociology syllabus, paper 1 and paper 2. In the second month, I read Nitin Sangwan sir notes, the book that came, the essentials of sociology. And when in the third month, I started doing answer writing. So there was Telegram groups that were offering daily answer writing courses. So I joined it. So they were 3 to 4 questions are posted daily and people could write answer on. So that's how I started doing answer writing. I was writing answers by looking at my notes, because in 1 month I couldn't remember all things. So that's how I started answer writing. And ma'am, after prelims I joined 2 test series. So I gave around 5 to 6 test papers of sociology paper 1 and sociology paper 2. Ma'am, there is a Telegram group called Socio Mentor. So on that they were offering daily answer writing. In February around I joined it. And ma'am, there is Nishad sir in Level Up. He also has this daily answer writing course. So I did daily answer writing course from 2 coachings. And for ma'am the test series, again I joined these 2 coachings. So the Social Mentor group, they post around 5 to 6 questions daily. So they're actually not a test series, they're a daily answer writing kind of thing. While Nishad sir has 4 tests for paper 1 and 4 for paper 2. So this is what I did for sociology, and I think that actually helped in getting a good score in sociology, because whenever I have learned from this means is आप जिस भी पेपर पे काम करते हो ना, उस पे नंबर आते हैं। मैंने सोशियोलॉजी बहुत आंसर, बहुत लोग क्या कहेंगे मैम देखिए अभी बहुत सारी मिसगाइडेंस है। So there are people जो ऐसे YouTube पे वीडियो बना रहे हैं कि आप ना कोई टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, बर्न योर टेस्ट सीरीज एंड ऑल। वो बहुत बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। मैंने सोशियोलॉजी में बहुत टेस्ट आंसर्स लिखे तो मेरे नंबर आए, मैंने GS में नहीं लिखे,
तो मेरे GS2 में लिखे तो उसमें आए, बाकी सब में नहीं किए तो नहीं आए। तो अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है, कंप्लीट योर सिलेबस वंस, चाहे देख के लिखो, कोई जरूरी नहीं आपको याद है, बट बस अपना वो इनर्शिया ब्रेक करने के लिए लिखो। एंड देन इवेंचुअली जब वो 3 महीने का टाइम आता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 1 या 2 और सब लिख लो। तो आई थिंक उससे हो जाएगी आंसर राइटिंग। मैम प्रीलिम्स मेरा काफी स्ट्रॉन्ग रहा है तीनों में। मैंने फॉरेस्ट की भी कट ऑफ तीनों बार क्लियर करी है। लास्ट ईयर आई गॉट 108, उससे लास्ट टाइम 98। सो प्रीलिम्स का मैम मेरा ये रहा था कि मैंने करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया। मैंने स्टैटिक जो बुक्स थी, जैसे जिस टाइम पे आप कोई बहुत बड़ा कंपाइलेशन पढ़ रहे होगे, उतने में अगर आपने मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम को 4 बार पढ़ लिया तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं मैम, वो जो आपको पता है ईयर एंड पे कंपाइलेशन आती हैं बहुत सारी, आप उसको पढ़ते रह जाओगे ना, वो उससे एक क्वेश्चन भी हिट नहीं होता है। तो यू जस्ट फोकस ऑन स्टैटिक। एंड मैम सेकंड था कि मैम आपका सोशियोलॉजी का स्लीपी क्लासेस का एक प्रीमिक्स आता है। सो 5 क्वेश्चंस आई थिंक डेली फॉर एवरी सब्जेक्ट। सो मैं जब खाना खाती थी तो मैं उसको चला लिया करती थी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है मेरी बहुत सारी ऐसी नॉलेज थी, उसमें मैंने नोट्स नहीं बनाए, वो मेरी सबकॉन्शियस में आ गए थे। तो उससे मेरे बहुत अच्छे से आंसर मतलब एलिमिनेट हो जाते थे। सो व्हाट आई डिड वाज कि स्टैटिक पे बहुत ज्यादा फोकस, 5 क्वेश्चंस डेली। एंड जो डेली करंट अफेयर्स की कभी कभी वो आते हैं कि कोचिंग वाले डालते रहते हैं, तो आप किसी भी कोचिंग पे चले जाइए, तो वहां पे मैं उसको पढ़ लिया करती थी। अगर उसमें कोई प्लेसेस इन न्यूज है जो बहुत फेमस है, तो वहां से मेरा करंट अफेयर्स हो जाता था। और न्यूज़पेपर वाज इंडियन एक्सप्रेस, तो दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। एंड मैम प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मुझे लगता है नॉलेज सबके पास बहुत है, लोग टेक्निक नहीं पता कर पाते। अगर आप प्रीलिम्स में, मैम इस बार क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो लकड़ी से शायद राइट। तो मैम उसके लिए आप कितना भी पढ़ लिया आपको नहीं पता होगा। बट अगर आपको लकड़ी पकड़नी है तो आपके पास थंब होना जरूरी है। थंब मतलब आप एक ह्यूमन वाले उसमें इवोल्यूशन से देखे तो आप एक एप वाले उसमें आना चाहिए। तो ऑर्ग्यूटान ऐसे आंसर उसमें आ गया था। तो अगर आप बहुत सारे मॉक देते हैं प्री के लिए, सो यू हैड द आइडिया कि भाई कैसे करना है। और मैम एक और चीज होती है कि गोल्डन रेशियो होना चाहिए आपका कि भाई मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ या करती हूँ और मेरे मैक्सिमम नंबर आते हैं। तो उसके लिए मैं ये करती थी कि मैं OMR रखती थी अपने पास, और जो मेरे एक ऐसे होते हैं जिसके शॉर्ट आंसर पता है, उसको मैं ब्लैक से मार्क करती थी। जो जिनमें मैंने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए उनको मैं रेड से मार्क करती थी, एंड जिसमें 3 कर दिए उसको ग्रीन से, और जिसमें बिल्कुल एकदम दिल से एकदम तुक्का मारा उसको ब्लैक से। तो देन आई रियलाइज कि जो मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला है उसमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी खासी आ रही थी। तो अगर मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ती तो मेरा स्कोर कम हो रहा था। पर जो क्वेश्चन जिनमें मैं बिल्कुल ही तुक्के मार रही थी उसके बारे थे, तो आई स्टॉप डूइंग दैट। सो माय अटेम्प्ट वाज अराउंड 90 to 94। सो अगर आपको ये पता चल जाए तो मेरे ख्याल से हो जाएगा प्रीलिम्स आराम से। राइट मैम एक तो आपने सोशियोलॉजी में बात होती है कि मिस इन्फॉर्मेशन है ना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन से ज्यादा फैलती है। तो ऐसा होगा कि जब आपके पास बच्चे हैं ना मैम, वो बहुत ही ज्यादा हाइप बना दिया है कि भाई मैम चेंज हुआ है तो सबके लिए चेंज हुआ है। तो सबसे पहली बार जब ऐसा पेपर आता है तो अगर आप स्टेट ऑफ माइंड अपना नॉर्मल रखें कि भाई मुझे नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता। एंड सेकेंड मैम जो इन्फॉर्म गेस्ट वर्क है वो अभी भी आराम से हो सकता है अगर आप, क्योंकि मैंने किया इस बार द एग्जाम्पल दैट आई गेव। एंड सेकेंड है मैम कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पढ़ने से फायदा नहीं है तो मैम आई थिंक यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द लिस्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार तो पैटर्न बदल गया है, ये नहीं हो रहा है, आप ऑलरेडी जितना सब कर रहे हैं, एक बेयर मिनिमम है। हमको प्रीलिम्स में ऐसा तो है नहीं 180 लाने, वी हैड टू गेट अराउंड 100। तो अगर आप उतने क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जो हमारी स्टैटिक बुक की नॉलेज से, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास पैटर्न में चेंज हुआ है। जैसे लास्ट ईयर कोचिंग वालों की जो टेस्ट सीरीज थी उनमें लोग कह रहे थे यार बड़े रैंडम क्वेश्चन डाल दिए इन लोगों ने ऐसे, एंड पेपर एक्चुअली उतना ही रैंडम आया। तो सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग मॉक तो आपको एटलीस्ट एक झेलने का आइडिया हो जाता है कैसे करना है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले, बस आपको इतना हो जाएगा कि क्या करना है। जैसे इस बार प्रीलिम्स का मैम पेपर आया, मेरे को पेपर देखते ही हंसी आ रही है। पेपर फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं आता, सेकंड पेज पे कुछ नहीं आता, करते करते बट देन आई लाइक टुक अ डीप ब्रेथ एंड थॉट कि भाई किसी को भी नहीं आता। एंड फिर मैंने अपना दिमाग ढंग से लगाया तो आई वाज एबल टू डू 82 क्वेश्चंस। मैंने कम क्वेश्चंस करे, पेपर टफ था इस बार। मैम मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें सही है कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है। आई थिंक इट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन।
Ma'am, as I already told in prelims, the premix, especially for the ancient and medieval history, I never used to watch you for the polity questions also. And ma'am, in sociology, the video that sir has uploaded, I did it for only for paper one, didn't approach for paper two. So ma'am, sleepy classes has been a very cornerstone in my preparation. So I would like to express my gratitude for the initiatives. Right. मैम स्पेशली जो ज्योग्राफी आई एक्चुअली ज्योग्राफी में मैंने बहुत ज्यादा स्लीपी क्लासेस को फॉलो किया है. श्रद्धा मैम थी आई गेस, तो वो अपने जो उनकी वॉल्केनो वाली, मैं उनको देख के मुझे लगता था कि अगर मतलब आई यूज्ड टू लाइक वॉच एवरी वीडियो ऑफ हर्स. तो प्रीलिम्स प्रीमिक्स हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट in my prelims preparation. So I would like it, because Shekhar sir, ma'am, you and Shraddha ma'am, I have been watching from past 3 years. Your initiative is helping a lot of people because I prepared from my home. So I'm from Kota, Rajasthan. So I was there preparing alone. So your initiatives really helped. Right. Thank you so much, Aditi. Thank you for connecting. Thank you for joining in. And hopefully we'll see you in Chandigarh soon. Thank you. Okay. See you. Bye.